Good evening, everyone. Do we have any doubt from the previous class? All were informed that we had class today, right? As I told you, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास बहुत स्लोली करेंगे, तो हम जब भी मिलेंगे थोड़े थोड़े टॉपिक्स ही करेंगे, ठीक है, विद इट्स रिवीजन ऑफ बेसिक्स, राइट? ओके, हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है। एंड आप लोगों का अच्छा इसमें मिक्स है, जो क्रैश कोर्स वाले हैं मंडे से उन लोगों का एनवायरमेंट इकोलॉजी भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन कवर हो गया है एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विल बी कवरिंग कि मेन ये है कि अप्रैल एंड तक आपके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट खत्म हो जाए, बस आपके लिए करंट अफेयर्स बचे, ठीक है? चलिए, नाउ विल बी बिगिनिंग विद द करंट अफेयर्स. So till this point we had discussed Parliamentary Committee on Official Language, right? Right? Very good. Now there had been an arrest of a cabinet minister. There is an arrest of a not cabinet, union minister, Narayan Rane, by the Maharashtra police, right? And this may bring a question about the powers and privileges of a minister in India. The person Narayan Rane was arrested for making some comments against the chief minister of Maharashtra, right? Now, can a union minister be arrested? Can a union minister be arrested? A question may come that a union minister cannot be arrested during his official tenure. True or false? A union minister cannot be arrested. So false. False. Why? How do we know that? So he can be arrested with the permission of the speaker. No, this means there can be another statement also. The person has been arrested. तो इसका मतलब अरेस्ट तो हो ही सकते हैं, ये बात तो क्लियर है. वेरी गुड. अब हमने पढ़ा है that there are certain parliamentary privileges and a minister must become a member within 6 months. Is it clear? So, and the minister always had the parliamentary privileges. ये मत सोचिए क्वेश्चन आ सकता है that a minister, तो parliamentary privileges से तो क्वेश्चन आना ही है इस बार, that a minister who is not a member of either of the house does not have parliamentary privileges. True or false? True or false? बताइए. बताइए. False. False. Why? Because the minister has parliamentary privileges. अब क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, पहली चीज उनको पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस कब होती हैं या किसी मेंबर को, व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन. ये ऐसा नहीं है दैट द प्रिविलेजेस विल ऑलवेज बी देयर. Privileges will always be there, right? ये privilege कब रहती है? When the parliament is in session. Clear? When the parliament is not in session, there can be an arrest, and that arrest can be in a criminal case, right? बाकी जो privileges हैं, that are only for the civil cases. Criminal case के लिए arrest वैसे भी हो सकते हैं. Now there is under this section 222A, which says that the authority who is arresting that person, they must intimate the chairperson of the house or the presiding officer of the house. As Narayan Rane is a member of Rajya Sabha, so there has to be an intimation of the arrest to the presiding officer. Is it clear? चाहे session में हो चाहे ना हो, there has to be an intimation. Is it clear? Is it clear? Very good. Now, the protection, what are the privileges from the protection? The privileges are that a person, ये क्या हो गया? आप लोगों को तो कुछ दिन कुछ फर्क पता लगा? ब्राइटनेस में आप लोगों को तो कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ ना? ठीक है, हमारा नाइट मोड ऑन हो गया, अब ये नहीं पता बंद कैसे करते हैं. ठीक है, तो चलिए. Now, the person may be arrested for 40 days before the session. रोहन, डाउट है बेटा? हाँ सर. हाँ बोलो.
सर ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द राज्यसभा में जो लिखा है कि द चेयरपर्सन शुड बी इंटिमेटेड. हाँ. सो सर इफ द यूनियन मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस तो भी राज्यसभा के चेयरमैन को ही दिया जाएगा इंटीमेशन? नहीं, अगर वो कहीं के नहीं है तो उस टाइम पर उनको इंटीमेशन देना होगा. जो आपके उस टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है उनको देना होगा. दे विल इन्फॉर्म अकॉर्डिंग. ठीक है. ओके, थैंक यू. ये राज्यसभा इसलिए बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ओके. नाउ अब 40 days before the session, 40 days after the session, a member cannot be arrested in case of a civil case. Okay, in case of a civil case. अब ये जो अरेस्ट है ये मॉनसून सेशन के बाद हुआ था इमीडिएटली, राइट? एंड इट वाज नॉट 40 days. तो वो 40 days जो नहीं हुए थे, क्या इनको अरेस्ट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बिकॉज दिस अरेस्ट इज ऑन अ क्रिमिनल केस. क्लियर? समझ में आया? That for a criminal case, the person can be clearly arrested. यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? Very good. Now, इसके बाद इस न्यूज में कोई दिक्कत है आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाले में? राजेश, अटक गए हो या सोच रहे हो बहुत जोर से? बहुत जोर से सोच रहे हो? क्या हुआ? हाँ, समझ में आ गया ना? क्योंकि जब तुम सोचते हो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, इसीलिए. चलिए, उत्तराखंड में इलेक्शन भी हो गए, नए चीफ मिनिस्टर भी आ गए. क्लियर? लेकिन उससे पहले क्या था कि जो तीरथ सिंह रावत थे, ही हैड टू रिजाइन. ही हैड टू रिजाइन बिकॉज ही कुड नॉट बिकम अ मेंबर विद इन 6 months. एंड अ पर्सन कैन ओनली बिकम अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 6 months. राइट? नाउ व्हेन अ पर्सन कुड नॉट become a member, that person has to resign. लेकिन उसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन के या आरपी में जो प्रोविजन है वो जानने हैं, because UPSC has in 2021 asked question from RPA also, right? तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है. तो you must know that if there is a seat vacant, there can be a bypolls, right? वो bypolls कितने टाइम में होने चाहिए? Those bypoll has to be conducted within 6 months. bypolls 6 months में होने चाहिए. अब जो आरपी कहते हैं, वो आरपी कहता है कि विद इन 6 months देयर हैज टू बी इलेक्शन, बट इफ द रिमेनिंग टर्म इज लेस देन 1 year. अब मान लीजिए 4 साल हो गए, बायपोल होने हैं, 1 साल ही बचा है. तो 1 साल अगर बचा है तो इलेक्शन कमीशन को जरूरी नहीं है इलेक्शन कराना विद इन 6 months, राइट? और अगर इलेक्शन कमीशन बोलता है या सेंटर सर्टिफाई करते हैं दैट होल्डिंग बायपोल इज डिफिकल्ट. ओके, holding bipole is difficult. Do not certify नहीं है, इसमें certify है that the bipole at the time is difficult. Is it clear? या तो 1 year का टाइम बचा हो, उससे कम, या फिर सेंटर या इलेक्शन कमीशन स्पेसिफाई करते हैं, तब इलेक्शन जरूरी नहीं है करवाने. क्लियर? एंड इट हैपेंड इन द टाइम वेयर द इलेक्शन वर क्लोजर, इसीलिए नहीं कराया. अब हमें जानना है चीफ मिनिस्टर का प्रोसीजर भी. तो चीफ मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होते हैं? हाउ इज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर सेलेक्टेड? अपॉइंटेड. अपॉइंटेड, वेरी गुड. इलेक्ट तो नहीं होते हैं, डायरेक्टली भी नहीं होते हैं. बोलिए तो सही. चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, वो तो एमएलए होंगे. हाँ, तो बेटा चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड. जैसे प्राइम मिनिस्टर का था ना अपॉइंटेड है, ऐसी चीफ मिनिस्टर. क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग चीफ मिनिस्टर इतना अच्छे से नहीं पढ़ते. तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए एडवाइस देंगे, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, राइट? अब टर्म क्या होती है चीफ मिनिस्टर की? प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राइट? द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर प्लेजर ऑफ द गवर्नर. लेकिन जब तक मेजोरिटी तब तक नहीं हटा सकते. अंडरस्टूड? क्या स्टेट असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है? यस, यस सर. स्टेट असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन से द पर्सन कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? लगे हाथ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी रिवाइज कर लेते हैं, है ना? अब शुरू कर दिया तो कर ही लेते हैं, फिर लगेगा अरे यार पढ़ा नहीं. हाँ जी, क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? कुछ याद है किसी को?
Anyone remembers? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो तो आर्टिकल 75 है। Can be introduced only in Lok Sabha against Very the good. entire Council of Ministers. If passed, the government stands null. Very good. How many members are needed to introduce no confidence motion? 50 members. 50 members. It is not mentioned in the constitution. ठीक है? अच्छा, रीजंस देने होते हैं क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए? Yes, sir. नो। Sir, No reason, sir. permission चाहिए होती है सर, हाँ बेटा, स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है बिफोर प्रिजाइडिंग इंट्रोड्यूसिंग। ऑफिसर की, स्पीकर की? स्पीकर की सर, क्योंकि सिर्फ लोकसभा में ही होगा। हाँ, स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है एंड नो रीजंस आर टू बी स्पेसिफाइड। क्लियर? ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? वेरी गुड। नाउ दिल्ली गवर्नमेंट, हाँ बेटा, सर, जैसे कोई सीएम है, वो अभी एमएलए नहीं है, पर वो ओथ लेते हैं एज ए सीएम सदन में बैठने के लिए, तो सर वो किसी मैटर पे वोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, ओके। वोट सिर्फ मेंबर कर सकते, वोट का राइट सिर्फ मेंबर। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? चलिए, अब दिल्ली में देयर वर increasing number of cases. At that time there was a demand by the ruling party MLA only that there should be president's rule in Delhi. Okay, देख रहे हो, विभीषण जो है पार्टी के अंदर ही रूलिंग पार्टी की प्रेसिडेंट रूल ले आई है। तो दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल कुछ नया नया सा है ना, क्योंकि दिल्ली तो ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी है, राइट? सो वी मस्ट नो अबाउट द नॉर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर लगेगा? 239 है भी। हाँ, सामने लिखा है इसलिए समझ गया। पहले पता था आप लोगों को? नहीं, पता था सर, ये पहले लेकिन पता था आपने लास्ट टाइम पे जब है ना, हाँ, कि ये सिर्फ जो बाकी चीजें स्टेट के लिए, यूटी के लिए अलग होता है ना? तो दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल कैन बी देयर बट इट इज नॉट अंडर आर्टिकल 356. Clear? It is mentioned under article 239AB because the responsibility of a union territory lie with the president, right? The responsibility lie with the president, and that means if the president thinks that the administration that has been delegated to a legislature is not performed as per the norms of the constitution, there can be president's rule. Lieutenant governor's rule नहीं लगेगा। मिसकंसेप्शन हो सकता है ना, there can be lieutenant governor's rule, बट बेटा एलजी रूल तो रहता ही है वहां पर हमेशा, और दिल्ली में तो एलजी के पास वैसे भी बहुत सारी पावर है ना? तो दिल्ली में there can be president's rule कब? where there is a report from the lieutenant governor. अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर देते हैं कि अंडर आर्टिकल 239AA the UTs are governed under article 239AA, that बोलते हैं that this UT is not being governed under these articles. Constitution नहीं, article. अगर UT state की तरह भी govern हो रही है, in that case also a union territory can be having a president's rule. समझ गए? यानी कि अगर यूनियन टेरिटरी के जो लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट के लॉज बनाने की पावर पे बार बार क्रिटिसिज्म करता है, बिकॉज अगर यूटी के पास लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट की स्टेट लिस्ट पे पावर बनाने की पावर नहीं जाती है। पार्लियामेंट कैन स्टिल लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ओके, तो देयर कैन बी अ प्रेसिडेंट रूल। और कोई ऐसा सिस्टम आता है वेयर देयर इज नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इन दैट केस प्रेसिडेंट में सस्पेंड द administration for the specified time period. Is it clear? For the specific time period that there will be president's rule. The president's rule under union territory is not under the article 356. It is not for the failure of constitutional machinery as explicitly. It is for the failure to follow the article 239AA. Okay.
समझ में आया? कब तक के लिए होगा? स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे वहां पर तो ये होता है 6 महीने एक बार, है ना, प्रेसिडेंट्स रूल 356 में। यहाँ पर 6 महीने वाला नहीं, यहाँ पर क्या है, दैट इट शुड बी स्पेसिफाइड इन सच अ लॉ। क्लियर? अंडरस्टूड? सर पुडुचेरी तो भी वहां पर भी तो सीएम कंसिडर, तो वहां पर भी आर्टिकल 239 239 ए आया, तो 239 ए से पहले भी तो कुछ होगा, वो 239 ए है। ओके, वो गवर्न होता है 239 ए से पुडुचेरी। क्लियर? सर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा अगर, तो किसके सेम अंदर? प्रोसीजर 239 ए भी? ए 239 बी, 239 ए अलग है, 239 ए अलग। ये 239 ए बी इज ओनली फॉर दिल्ली, ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए। ओके, 239 होता है आपके पर्टिकुलरली फॉर द यूनियन टेरिटरीज, एंड 239 ए है आपकी पुडुचेरी के लिए। ओके, समझ में आया है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। नाउ वेस्ट बंगाल ने बोला हम बनाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, बन गया कि नहीं बन गया अभी तक? ठीक है, तो जब पेपर में जाएंगे तो एक चीज ये देख के जानी है, जिस दिन पेपर में जाएंगे देख के जाना है, ठीक है। लेकिन अभी और देख लीजिए 1 मई तक, ठीक है, जिस दिन हम लास्ट करंट अफेयर्स जब कराएंगे तो बता देंगे कि अभी क्या स्टेटस है। क्लियर? नाउ वेस्ट बंगाल इज डिमांडिंग टू हैव अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बच्चों होता क्या है ये, कहां कहां, पहले तो जानेंगे किस किस स्टेट में है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विच ऑल स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, शायद 2 लास्ट। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक रह गया। तो कर्नाटक में भी है शायद। कर्नाटक में भी है एंड तेलंगाना में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में है? नहीं सर, वो तो 50 बन गया है अभी। तो बेटा स्टेट नहीं है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ होगा, है ना? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ होगा? तो इसीलिए देयर हैज टू बी अ यूनियन टेरिटरी। इज इट क्लियर? वो सॉरी, देयर हैज टू बी अ स्टेट। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो देयर हैज टू बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? नहीं सर, नहीं है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट देयर हैज टू बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। समझ रहे हैं कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? नाउ who has the power to create and abolish the state legislative council? पार्लियामेंट सर। पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन अगर आता था पार्लियामेंट on its own can create and abolish state legislative council, true or false? फॉल्स। तो स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए। हाँ बेटा, तो फॉल्स, स्टेट से भी चाहिए सर रिकमेंडेशन चाहिए। अब पार्लियामेंट कौन सी मेजोरिटी से बनाते हैं? सिंपल मेजोरिटी। एंड स्टेट कौन सी मेजोरिटी से रिकमेंड करते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। Now the constitution under article 169, this is the only power that the state have to initiate any change in the constitution. Article 169 सिर्फ एक ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाने के लिए। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने की पावर किसके पास है? इट इज विद द पार्लियामेंट, ठीक है। सो आर्टिकल 169 प्रोवाइड्स the power that the state legislative councils can be created and abolished through a resolution passed by the special majority by the state legislative assembly and passed by the simple majority of the parliament. Is it clear? क्या वो amendment की तरह काउंट होगा? नहीं। नहीं। वेरी गुड। क्यों? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। So it will not be counted as an amendment. तो क्वेश्चन आ सकता है that the creation of the legislative council in West Bengal is through 106th constitutional amendment
act. True or false? सर फॉल्स। False. आर्टिकल 2 में लिखा है कि ये नहीं होगा करके। 2 में नहीं बेटा, 4 में लिखा है। 4 में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा वहां पे लिख के आना है, अगर पता होगा सर्वर कर देंगे, इतने कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब लेजिस्लेटिव काउंसिल चलो बन रहा है वेस्ट बंगाल में, कितनी सीट्स होंगी? 1/3 ऑफ द असेंबली। नहीं, But maximum 15%? can be 1/3 of the assembly seat, minimum can be 40. Okay, maximum can be 1/3 of the। आप लोगों को पता है नोट्स पहले क्यों मिले हैं? गेस करो किस लिए मिले हैं पहले? कि हम लोग एक बार देख ले, ठीक है, लेकिन क्लास के बाद आप लोग जरूर देखिएगा। और सब लोग जो है मतलब है कि अरे पागल है क्या, पैसे भी दे, क्लास में बैठे और खुद भी पढ़ के आए, है ना? Very good. So 1/3 is the maximum and minimum is 40. Clear? Answer this question. There is no state in India that have seats less than 40 in the legislative councils. True or false? फॉल्स। कहाँ बेटा, कहाँ पर है? इससे कम सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बन गया? नहीं बताओ, कौन से न्यूज़पेपर में आया जो हमसे मिस हो गया? सर वो स्टेट हिल- लेजिस्लेटिव से, हाँ बेटा, सर असेंबली की बात हो रही थी शायद। state legislative council in India, there is no state legislative council which has seats less than 40. True or false? सर स्टेटमेंट तो फॉल्स है सर। False है? बताओ हाँ। ना कहाँ है 40 से कम, वो बस ये होगा, छोड़ो कहाँ है 40 से कम? हिली स्टेट बेटा में 5th होगा। एडिशन अगर आपका बुक है तो जम्मू एंड हाँ बेटा दिल्ली में है ही नहीं। और दिल्ली तो यूटी है। आप सर, इलेक्शन मैनिफेस्टो से एक एजेंडा क्यों छीन रहे हो आप सरकार का? हैं? केजरीवाल का एक ही तो मैनिफेस्टो में एजेंडा है कि स्टेट बनाएंगे, वो आप छीन रहे हो, ऐसे मत करो। चलिए, so yes, there is no state in India which has seats less than 40 in the legislative council. Okay, समझ में आ रहा है? सर वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहीं नहीं है। मिनिमम 40 है, उससे कम है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है 40 से कम नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर वाज एन एक्सेप्शन, इट हैड 36 सीट्स। ओके ओके, वेरी गुड। सर, हाँ बेटा, सर असेंबली का मिनिमम रिक्वायरमेंट? असेंबली का मिनिमम रिक्वायरमेंट 60, एक्सेप्शंस आर देयर। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम 30 सीट्स। इसमें सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, तुम सिक्किम याद है, गोवा कैसे भूल गए? हाँ हैं? गोवा कैसे भूल गए? तुमको गॉडफादर माफ नहीं करेंगे, ठीक है? तुमको बीरा मिलेगी अगर गोवा भूल गए तो, है ना? किंगफिशर एक हुआ करता था ना ब्रांड, तो हम लोग गए थे एक बार घूमने, ठीक है, और मैं और विशाल सर ही गए थे। विशाल सर बहुत चीजों बहुत नोटिस करते हैं, विशाल सर का नोटिसिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग देखा किंगफिशर हमें देखी, तो विशाल ये नहीं, किंगफिशर नहीं, किंगफिशर के 3 नाम होते, कोडिल्ला, कोडिली, किलकिले। ओके, तो किंगफिशर इन हिंदी इज कॉल्ड एज कोडिल्ला, कोडिली, किलकिले। ठीक है, तीनों माफ नहीं करेंगे तुम बोल रहे हो। Sir, what about Chang? क्या बेटा? Chang? चैंग, Yes. ये क्या होता है बेटा? Thai beer. ये थाईलैंड वगैरह का है ना? सुना है? Yes, sir. सुना। हाँ? आवाज कहाँ से आ रही? रुक जाओ, आवाज कहाँ से आ रही? अपनी पहचान सर, बताओ। सौरभ sir. अच्छा, सौरभ, Yes, sir. ठीक है। चैंग एक और वहां पे मिलता, नाम भूल गए। Tiger something. देखा है मैंने, ऐसे मत देखो आप लोग, अब देखा है, मतलब ऐसे शॉप में जाते थे तो वहां पे देखा है क्या? Ad देखा था सर टीवी पे। हाँ, नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वहां पे बड़ा फेमस ब्रांड है, जैसे इंडिया में है ना कुछ ब्रांड फेमस होते हैं, जैसे मैगी या अमूल दूध, ऐसे ही शायद
किंग्स है, किंग्स ही है शायद। चलिए, हाँ यहां तक समझ में आ गया। मैक्सिमम इज, अब लोग भटका देते हो, ठीक है। और कुछ तो डर रखो, कल से नवरात्र शुरू है, आज ही सब काम कर लोगे, फ्राइडे नाइट भी नवरात्रि कल से शुरू, आज तूफान मच रहा होगा सड़कों पर, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम सीट्स 1/3, minimum 40, but who will decide what will be the actual number of seats? अच्छा क्वेश्चन है ना, अगर आ गया तो अरे गुड, पार्लियामेंट विल डिसाइड, ठीक है। द पार्लियामेंट विल डिसाइड द एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स, क्लियर। बोलो, डाउट। सर वो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी 3 स्टेट्स में एक्सेप्शन है? सिक्किम एंड सिक्किम, अरुणाचल, गोवा। 5 में बेटा, 3 में नहीं है। मिजोरम एंड नागालैंड। सिक्किम, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड नागालैंड। इन तीनों में सिक्किम, अरुणाचल, गोवा में 30, मिजोरम में 40, नागालैंड में 46 मिनिमम है। क्लियर, वेरी गुड। क्यों टेंशन ले रहे हो, पहुंच जाएंगे हम वहां तक करंट अफेयर्स में। अभी तो यूपी वाले इलेक्शन भी तो कवर होंगे ना, इलेक्शंस हुए थे तो करंट में वो भी आया, टेंशन मत लो आप लोग बिल्कुल। हाँ जी, पार्लियामेंट विल डिसाइड द एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स। तो कंपोजिशन क्या होती है असेंबली की, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। सो दिस इज द कंपोजिशन, दैट 1/3 seats are elected by the local bodies through indirect elections, proportional representation by means of single transferable vote, okay, PR by STV, indirect elections. 1/3 by local bodies, 1/3 by elected by legislative assembly. Understood? It will be elected by legislative assembly. Then 1/12 will be elected by the graduates, 1/12 will be elected by the teachers, and 1/6 will be by the government. He will be nominated. Nomination कहां से होता है? From the groupings of class. From the groupings of class. Understood? Yes or no? ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, नोट्स में तो आप क्या करना, बस याद रखिएगा, द एक्चुअल स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। द एक्चुअल स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर, चले आगे बच्चों। वेरी गुड। Now there had been a lot of controversy regarding the central deputation, right? And it started with the West Bengal, और उसके बाद जब civil services rules में भी change किया गया है, ठीक है, तो we need to study about it. So the chief secretary, पहले समझते हैं, there was an extension of the term of the chief secretary of West Bengal. तो अगर एक ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल हैं, अगर उनकी टर्म खत्म हो रही है तो क्या उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, राइट? सो एक्सटेंशन कैन बी फॉर 3 months. Okay, extension can be for 3 months with the prior approval of central government. But if the person is the chief secretary, that this extension can be for 6 months also. Okay, there can be extension for 6 months also. Is that clear? And it is mentioned in this under the death cum retirement benefits. 3 months के लिए in general and 6 months for the chief secretary of the state. Okay, first thing, this is clear. सेकेंड थिंग, जो नॉर्मली एवरी ईयर एक लिस्ट तैयार होती है वेयर द सिलेक्टेड ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट दे आर गोइंग टू द डेपुटेशन. ये डेपुटेशन कब होती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एज एंड व्हेन कोई रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अग्रीड टू इट, देन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी अग्रीड टू बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना होता है. इज इट क्लियर? वेरी गुड. इसी के चलते देयर हैव बीन रूल्स और चेंज इन द रूल्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स. नाउ देयर इज रूल 6 of the IAS cadre rules which has specified that if
there is a need for an officer to be deputed in the central government, then the decision of the central government will be fine. As per means, if the state government is delaying it and does not give effect to the central government's norm, then in that case, the central government can get that officer on the deputation. Is it clear? Otherwise, state government say presently they needed a no objection certificate. Okay, they needed a no objection certificate with the state government, but with this new rule, no objection certificate will not be needed by the state government. Clear? Now, how many officers will be decided? That will be decided by the central government in consultation with the state government, and then state government will provide the names of such officers. Okay? Central government करेंगे and the state government will provide the names of such officers. कितने maximum हो सकते हैं? Not more than 40% of the cadre strength. Clear? Not more than 40% of the cadre strength. समझ में आया? In case there is any disagreement, then the state shall have to give effect to that order within the specified time. It means कोई specified time mentioned नहीं है. It is within a specified time. It means ऐसा कुछ नहीं है 2 महीने 4 महीने 6 महीने. It has to be in the specified time, and central government in public interest can provide the deputation to the state government employees. Central government को public interest के अलावा कोई और reason देने की जरूरत नहीं है. Clear? Central government do not need to give any other reason. समझ गए? Very good. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सर जो स्टेट गवर्नमेंट डेपुटेशन पे भेजेगी, जो सेंटर मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस से सिलेक्टेड है उन्हीं को भेजेगी, या फिर बाद में जो खुद के स्टेट गवर्नमेंट के जो खुद ऑफिसर्स होते हैं उनको भी सेंड कर सकती है? स्टेट को कैसे, स्टेट वाले को सेंट्रल पे कैसे भेज सकते हैं? जब नहीं, प्रमोटी होते हैं, पूछ रहे हो? हाँ, प्रमोटी बेटा ऑल इंडिया सर्विसेज के हो जाते हैं, फिर वो आईएएस कैडर से वो अलॉट हो जाते हैं. जब आप ज्वाइन करेंगे तो हो जाते हैं वो पीएएस ऑफिसर, जिसे कहते हैं पीसीएस, प्रोविंशियल कमीशन सर्विसेज. ओके, अगर अ पर्सन इज प्रमोटेड, दैट पर्सन बिकम्स द पार्ट ऑफ द आईएएस कैडर. फिर वो सारे सेंट्रल वाले रूल्स फॉलो करेंगे. क्लियर? समझ गए? अदरवाइज प्रमोशन तो इन जनरल वैसे भी होता है ना, क्यों बोले कि आईएएस बन गए? प्रमोशन तो पीसीएस बना के भी डीएम बना सकते हैं किसी को, लेकिन पीसीएस को डीएम नहीं बना सकते. द पर्सन हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द आईएएस कैडर. इज इट क्लियर? इसीलिए ये जो नॉर्म्स है ये तभी है जब पर्सन इज बिलोंगिंग टू द आईएएस कैडर. और एक्चुअली बात पता है क्या है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो चाहते हैं डेपुटेशन पे जाना. ठीक है, ऑफिसर दे वांट टू गो टू द डेपुटेशन, लेकिन नो क्लियरेंस की वजह से वो नहीं जा पाते हैं मोस्टली. ये उनके लिए, क्योंकि डेपुटेशन मतलब लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर लर्निंग. क्योंकि अभी आप डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे थे, अब आपको बस एक ऑफिस संभालना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई और आपकी लर्निंग बढ़ गई, बिकॉज यू आर वर्किंग इन द मिनिस्ट्रीज. मतलब कैसे पॉलिसी बनती है आप उसका पार्ट है. इसका सिंपल समझो, अगर किसी के नाम के आगे डायरेक्टर लिखा है, ठीक है, तो मतलब वो ऑफिस पोस्ट पे है, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर. कमिश्नर लिखा है, कलेक्टर लिखा है, मतलब वो फील्ड में. ठीक है, कमिश्नर और कलेक्टर फील्ड, डायरेक्टर ऑफिस. क्लियर? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नो? वेरी गुड. चलिए, अब एक महाराष्ट्र पुलिस से एक पर्सनल had been dismissed, and this dismissal was under the article 311 clause 2b of the Indian Constitution. तो हमें पढ़ना होगा अब ये क्या आर्टिकल है, क्योंकि जब ये अवोक हुआ है तो we must know about it. किस चीज से डील करता है आर्टिकल 311? It is related to the powers, functions and the safeguards for the civil servants. Okay, सिविल सर्वेंट्स के लिए पहला सेफगार्ड सबसे बड़ा ये है कि सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव बाय एन अथॉरिटी, कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी विच इज सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी विच मेड द अपॉइंटमेंट.
आपको जिस अथॉरिटी ने अपॉइंटमेंट दिया है आप उससे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के थ्रू रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट जो है रिमूव, डिसमिस या आपकी रैंक मतलब डिमोशन नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग हिम और हर द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस। बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए द पर्सन कैन नॉट बी रिमूव्ड, ओके। अब ये सेफगार्ड कब अवेलेबल नहीं? पहला, वेयर द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर अ क्रिमिनल केस। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको कन्विक्शन हो गया है क्रिमिनल केस में, तो यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सर्विसेज, डिसमिस्ड। बेटा लेकिन कन्विक्शन है, अक्यूज्ड नहीं, अक्यूज्ड में सस्पेंशन है, ठीक है। अब आप समझ रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं, सबसे ज्यादा डर में रहते हैं, ये रीजन है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2, क्लियर, समझ में? दूसरा, द अथॉरिटी, if the authority is satisfied कि it is not practical to hold such an inquiry, or where the president of the government is satisfied that it is with respect to the security of the state, तो तब आपको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं, क्लियर, समझ में आया? नहीं सर डिसमिस और रिमूव में तो डिफरेंस होता है, तो फिर दोनों चीजें मतलब ऐसा आइदर तो किया उसने, मतलब और क्यों लिखा है? हाँ, डिसमिस और रिमूव में तो दोनों में अंतर होता है ना? नहीं बेटा, अंतर ये होता है, मान लो किसी को जो ऑफिस दिया हुआ वो हटा दिया उस ऑफिस से, ठीक है, कोई और ऑफिस मिल सकता है इन फ्यूचर। डिसमिस में नौकरी से ही हटा दिया, समझे? मान लीजिए कोई जो है पर्सन है, उसे आपको नौकरी से ही बिल्कुल साफ करना है, दैट इज डिसमिसल, ठीक है। उनको अथॉरिटी से रिमूव करना है, द पर्सन में बी सेंट टू द ट्रेनिंग अकेडमी ऑल्सो, रिमूवल फ्रॉम द ग्राउंड एंड सेंट टू द ट्रेनिंग अकेडमी, ये भी तो हो सकता है। सर कन्विक्शन पे तो वो डिसमिस ही होना चाहिए ना, रिमूव से मतलब क्या? नहीं, कन्विक्शन पे डिसमिस है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर इन केस होगा तो रैंक भी रिड्यूस कर सकते हैं ना, इसमें तीसरी चीज होता है, रैंक भी रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट लेड टू कन्विक्शन। अब मान लीजिए किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ 6 महीने का, ठीक है, तो उसे नौकरी से थोड़ी निकालेंगे उस चीज के लिए। पेटी क्राइम के लिए भी तो कन्विक्शन हो सकता है, ये भी तो सोचिए, पेटी क्राइम के लिए भी हो सकता है। ये क्यों मान रहे हैं कि उन्होंने मर्डर ही किया है ना? समझ गए? वेरी गुड। नाउ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी तभी इनिशिएट हो सकती है व्हेन देयर इज अ फॉर्मल चार्जशीट, उन्हें सिविल सर्वेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, एंड देन वो जो इंक्वायरी है इट इज सबमिटेड टू द इंक्वायरी। क्या एक एम्प्लॉय अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द रिमूवल? यस, फॉर दैट देयर इज अ ट्रिब्यूनल कॉल्ड एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। प्लस अगर वहां से भी आपको नहीं लगता है तो वहां पे देयर कैन बी अपील इन दी हाई कोर्ट्स। पहले सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन अब हाई कोर्ट को भी दे दी गई, ठीक है। दैट द अपील कैन बी मेड इन हाई कोर्ट देन इन सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ बेटा। सर ये रैंक रिड्यूस वाला पॉइंट एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। रैंक रिड्यूस मतलब मान लीजिए कोई आईजी रैंक पे है पुलिस में, उनको दोबारा क्या बना दिया? डीआईजी बना दिया, या फिर एसएसपी बना दिया, या फिर एसपी बना दिया। डिमोशन जिसे बोलते हैं ना, वो रिड्यूस इन रैंक मतलब डिमोशन, ओके। वो दिक्कत, कोई टेंशन? ऑन ड्यूटी अरेस्ट अगर कोई सिविल सर्वेंट होता है तो उसमें क्या इफेक्ट आता है? अगर ऑन ड्यूटी अरेस्ट होते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई अरेस्ट होता है तो उससे पहले वो लीव अप्रूवल करा लेता है। क्या होता है? मतलब अगर कोई ऐसा लगता है कि अरेस्ट होने का चांस है तो उससे पहले लीव अप्रूवल करवा लेते हैं, मतलब ऑन ड्यूटी अरेस्ट नहीं होते, तो ऐसा क्यों है? बेटा ऑन ड्यूटी अरेस्ट होने का मतलब है, ऑन ड्यूटी अरेस्ट से जो डरते हैं वो पहले इसलिए डरते हैं क्योंकि वो किसी करप्शन केस के लिए डर रहे हैं, ठीक है। ऑन ड्यूटी अरेस्ट मतलब करप्शन केस, मतलब डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ घपला हुआ है, इसलिए ऑन ड्यूटी नहीं करते हैं, इसीलिए लीव पे चले जाते हैं। ऑफिस आओगे तभी तो अरेस्ट करेंगे। सर सिविल मैटर में क्या कन्विक्शन हो सकती है? बेटा सिविल मैटर में कन्विक्शन हो सकती है, पेटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। सिविल मैटर में हो सकता है
कि आपको फाइन देना पड़ जाए, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो जाए, ठीक है, सिविल मैटर्स में। ओके सर। हाँ, जैसे ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, सिविल मैटर है, फाइन है, नहीं दे रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ्स के लिए या किसी को भी 6 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? नाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिस्टोर्ड द member of parliament local area development scheme, MP-led scheme. Question has come from this. Now this MP-led scheme, it was suspended for 2 years, 21-22, right? Now this has been expanded. So 21 means 2021 वाला financial year and 21-22 वाला. उसके बाद it has been expanded till 25-26. Now this extension is coterminous with the term of the 15th Finance Commission. So question आ सकता है, the MP-led scheme is continuing till the term of the 15th Finance Commission. True or false? True. Clear? अब MP-led scheme क्या होती है? This scheme was started in the year 1993 to ensure जो members of parliament हैं वो अपनी constituency में better development कर पाए. It is for the local area development. अब वो क्या करते हैं? It is for the durable community assets. MP-led scheme is for the creation of durable community assets, right? The assets of drinking water, primary education, public health, sanitation, roads, etc. Right? This scheme कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू इंप्लीमेंट होती है? Because ministry has also been asked as a question this year. So it is implemented through which ministry? It is implemented through Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, MOSPI के थ्रू इंप्लीमेंट होती है. Now कितना पैसा मिलता है? 5 crore annually. In this scheme, the MPs get 5 crore rupees annually, and ऐसे ही same lines पे there are schemes for the MLAs also, MLA-led scheme. Now ये जो काम है, जो उनको recommendation देनी है, it is the requirement that this 15% of the money must go to the areas that belongs to the scheduled tribes, scheduled caste, and 7.5% to the scheduled tribe population. अब ये MPs है, कहाँ काम कर सकते हैं? These MPs, they can get this work done in their constituencies from where they are elected in Lok Sabha. राज्यसभा में जहां से वो जिस स्टेट सेलेक्ट हुए हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है लोक सभा तो है ही नहीं, राज्यसभा में they can get it anywhere in the country, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए? This is about the MP-led scheme. कोई डाउट हो तो बता दीजिए. इसका कंपलसरी ऑडिट होता है. सर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफरेबल होता है नहीं? हाँ, नेक्स्ट ईयर में होता है, क्योंकि बेटा ड्यूरेबल एसेट्स बना रहे हैं ना. देखिए लॉजिक, 1 साल में क्या आप पूरा स्कूल तैयार कर सकते हैं? जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है. तो ड्यूरेबल एसेट्स, और ड्यूरेबल एसेट रोड है, या तो जैसे मान ली 1 साल में जितनी बनाई, जल्दबाजी बना दी तो हो जाता है. अंडरस्टूड? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सिमिलर ऐसे ही एक स्कीम है जिसको बोलते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना. दिस स्कीम स्टार्टेड इन द ईयर 2014. संसद आदर्श ग्राम योजना, इट स्टार्टेड इन 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण. अभी जो स्कीम है ये क्या फोकस करते हैं? दैट द एमपीज, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, should ensure the socio-economic and physical infrastructure development of total 8 villages by 2024. That there will be 8 model villages by 2024 created by the MPs. Right? Now, this idea has given the representation to the model villages. In 2016, 1 village were created by every MP and 2 more by 2019. Now, कौन से एमपी कौन सी विलेज को डेवलप कर सकते हैं? ये कोई भी उस विलेज को डेवलप कर सकते हैं विच इज नॉट देयर ओन विलेज और द विलेज ऑफ देयर ओन स्पाउस. ओके, अपने घर वालों की विलेज के अलावा कोई विलेज डेवलप कर सकते हैं. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. MP-led scheme is under the Ministry of Statistics and Program Implementation, and the Sansad Adarsh Gram Yojana is under the Ministry of Rural Development. क्लियर? अब कहां से सर्च कर सकते हैं? एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से,
राज्यसभा एमपी उस स्टेट से और नॉमिनेटेड एमपी किसी भी ग्राम पंचायत किसी भी कंट्री में। ये लेकिन ग्राम पंचायत लेवल पे ही होगा, ठीक है। जैसे एमपी लेड स्कीम आप अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। एमपी लेड स्कीम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रूरल एरियाज, एमपी लेड स्कीम कैन ऑल्सो बी फोकस्ड अपॉन द अर्बन एरियाज ऑल्सो, राइट। बट when it comes to the Sansad Adarsh Gram Yojana, this scheme is for other areas also. Are we clear? Yes or no? Very good. सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरे नेटवर्क में इशू था। कहां तक? बस ये बता दें, एमपी लेड स्कीम अर्बन एरियाज भी कवर करती है, संसद आदर्श ग्राम योजना सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है, ग्राम पंचायत के लिए है सर, ठीक है। ये बेटा दोनों में अपने कुछ लिखना है तो लिख लो, ये क्वेश्चन संसद आदर्श ग्राम योजना से आ सकता है। व्हेन एमपी लेड हैज कम, दिस कैन आल्सो। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो यही मेंशन किया हुआ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग रीडिंग लगा लेना, तो बस जो समझना है वो है दैट इट इज थ्रू द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करेगी, आरसीआई, ठीक है। ये आरसीआई क्या होती है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल, इट इज द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट का पार्ट होता है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, okay। Rehabilitation Council of India, it is a statutory body. It was set up as a registered society 1986। इसका मैंडेट क्या है? मॉनिटर करना सर्विसेज के लिए जो पीपल विद डिसेबिलिटी है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस बनाना और सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर बनाना ऑफ द पीपल हु आर क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। ये प्रिस्क्राइब करता है प्यूनिटिव एक्शन उन लोगों के लिए जो विदाउट क्वालिफिकेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कोई भी अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि समवन इज स्पीच इंपेयर्ड और कोई बिना क्वालिफिकेशन के स्पीच थेरेपिस्ट बन जाए, ठीक है, तो वो पनिशमेंट भी मिलती है। क्लियर? दिस अबाउट द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एज कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम में किसकी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं? चलो ऑप्शंस दें, ऑप्शंस दें, ऑप्शंस दें। Capacity development scheme is for the development of capacity of the persons providing or the persons gaining the data for census. Second, it is the scheme to provide training under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Third, it is the scheme to provide training to engineers. Fourth, it is the scheme that is providing training to young girls to become entrepreneurs. बताइए सबसे पहले कौन सा रिजेक्ट करोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता? जल्दी बताओ कौन सा रिजेक्ट करो, बताओ बताओ बताओ। इंजीनियर। This is a scheme for the capacity development of the people who want to or who are हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे थे आप लोग, किसके लिए है स्कीम? गेस भी नहीं कर पाते, एग्जाम में नहीं पढ़ा तो दिस स्कीम is for the development of those people who are involved in statistics. Okay, so it is a scheme of Ministry of Statistics and Program Implementation for the capacity building of what gaining census data. Okay, okay. Census. Understood? Yes or no? Sir, can you repeat? Beta, this is implementation, and this ministry is for focusing on two things. And second, to provide the Am I audible now? Am I audible now? बताइए. Yes or no? Yes, for everyone, I am audible clearly. Yes, sir. Sir, please repeat again. It's a capacity building scheme. Is for the statistics collection. It is a scheme by Ministry of Statistics and Program Implementation. It is for the support of statistical strengthening, first thing, and for the economic census. These are the two reasons for which there is a scheme. Clear? Understood? Very good. Now, there was a People's Plan campaign. People's campaign was the initiative of Ministry of Panchayati Raj. Okay, the Ministry of Panchayati Raj, where they wanted to have a campaign called as Sabki Yojana Sabka Vikas. Okay, it was regarding the development of the Gram Panchayat. Okay, so development of Gram Panchayat ये किस लिए होता है? There are Gram Panchayat development plans. Under the Article 243G, the Constitution has specified that there should be a preparation of Gram Panchayat development plan, and everything in the Gram Panchayat should be in the lines of that plan. Okay, so People's Plan campaign उसी के according for the Gram Panchayat development plans. Clear? And it is the part of Ministry of Panchayat, not the Ministry of Rural Development. कैसे हमें पता? देखो, क्योंकि दोनों मिनिस्टर तो सेम पावर लेके इन्होंने कर दिया, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, क्लियर? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. सर बेटा, सर एक और पूछना था सर, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, हर बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 4-5 वो लोग टॉपिक देते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स देते हैं और पूछते विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सब वो हर बार गलत होते हैं, मतलब एक हाथ से चूक जाता है. हम 1-2 मार्क करते हैं, आंसर 1-2-3 होता है. तो क्या मतलब, क्या सोच के आप उस टाइम दिमाग में क्या लगाते हो कि क्या सोचना? सर वही समझ नहीं आ रहा, इसलिए गलत हो जा रहा है वो. देखिए, ये वाले क्वेश्चंस इजी नहीं होते, ये वाले बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है पंचायती राज से क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग सब देख तो नहीं रहे स्क्रीन पे, कहाँ कहाँ से खोल रहे हैं, दिख तो नहीं रहा?
नहीं सर। पता लग जाए कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। कहाँ से पूछा है? पंचायती राज। सर जैसे सर 21 में भी था, देखो सर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, और चार दिए थे। अरे ये सब क्वेश्चन इनसे डरना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं, कांपने वाला क्वेश्चन। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछे। लो बेटा ये देखो 5th क्वेश्चन आप लोग। इज इट विजिबल? यस। देखिए बताइए। सी। सी। वेरी गुड। कैसे आप लोगों ने दिमाग लगाया? ये में याद आंसर है ना? ये दिमाग लगाया क्या आप लोगों ने? बताइए। देखिए अब फंडामेंट ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायत का? लोगों का डेवलपमेंट करना है ना, एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना कोई पर्पस नहीं था पंचायत का, कोई भी पर्पस नहीं। पैसे को मोबिलाइज तो हो ही नहीं पा रहा है, पर्पस तो बहुत दूर की बात है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन तो कोई था ही नहीं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दैट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज होते 1 2 3 4 चारों। द ऑब्जेक्टिव्स तो चारों हैं, लेकिन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपर्ली। बस एक ही तरीका, और कुछ नहीं। और जिस क्वेश्चन में बेटा डाउट है आप भेज देना ग्रुप पे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके गाइस, वेरी गुड। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को अच्छे से काम करना चाहिए, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से भी क्वेश्चन हो सकता है। नाउ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इज क्रिएटेड थ्रू विच एक्ट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956। ट्रू और फॉल्स? Very good. So zonal council, is it a zonal council? Yes sir. Yes. Was it created with other zonal councils? No. No. Other zonal councils were created by State Reorganization Commission Act 1956. तब 5 zonal council बने थे। बहुत मुश्किल है, याद नहीं रह पाएगा आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, ठीक है? 5 जोनल काउंसिल बने थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर। लेकिन इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। ट्रू और फॉल्स? द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। बताइए। ट्रू सर, लिखा हुआ इधर। वेरी गुड। So it was established through North Eastern Council. North Eastern Council Act 1971। इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स हैं, ठीक है? दूसरी चीज, इसके मेंबर्स कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर भी होते हैं, ठीक है? एंड इसमें जो है चेयरमैन जो होते हैं दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके? इसमें 3 मेंबर अलग से होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ द और दैट आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल चेयरमैन देखते हैं। सर। हाँ बेटा। सर ये थर्ड पॉइंट में से स्पेसिफिकली क्यों लिखा है कि 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम? बेटा क्योंकि ज्योग्राफिकली सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नहीं आता ना,
ये वाला जो रीजन है यहाँ, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुरू होता है। ठीक है, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर खत्म हुआ, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुरू होता है। तो ज्योग्राफिकली तो नहीं आ रहा है। ओके, समझे, इसीलिए अलग से लिखा है। क्वेश्चन आए तो सारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, सारे मींस फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस, इवन द सिक्किम इज इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है सर, ये बाउंड्री इशू के लिए भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में डिस्कशन हो सकती है, बाउंड्री इशू के लिए, बाउंड्री इश्यूज के लिए। लाइक असम एंड नागालैंड की बीच में लाइक वायलेंस हुई थी शायद। बेटा वो कोऑपरेशन के लिए कोई मैटर डिस्कस करते हैं, बेसिकली इट इज फॉर द कोऑपरेशन विद इन द रीजन। ठीक है, कोई भी रिजॉल्विंग इशू है उसको क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेनली इट इज फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इट फॉर द डेवलपमेंट। समझ गए? वही देखिए चेयरमैन कौन होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, वैसे वो जोनल काउंसिल के तो प्रेसिडेंट वो होम मिनिस्टर होते हैं, इसके एक बार देख रहे हैं। चलिए मिल जाएगा तो देख के बता देंगे। वैसे होम मिनिस्टर ही होने चाहिए, लेकिन कहीं स्पेसिफाई नहीं, कहीं कुछ जगहों पर लिखा है प्रेसिडेंट होते हैं, तो विल गेट इनटू दैट, इतना वैसे डिटेल में नहीं आएगा, आएगा तो लेकिन आप लोग बीप बीप कर दोगे हमको, इसलिए देख के बता दें। ठीक है, चलिए नाउ एक इनिशिएटिव है जो गुड गवर्नेंस के लिए लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रगति। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रगति। ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं होगा कि जान है वो मेरी, ठीक है, तो कभी वहां पे लिख के आ जाओ। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस and timely implementation. Okay, it is a part of the good governance. Okay, proactive governance and timely implementation. It is an initiative by the prime minister's office to discuss. इसमें क्या होता है कि जो important officers हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल के, वो हाईएस्ट हायरार्की से लेके जूनियर लेवल तक दे आर पार्टिसिपेट। एंड इसमें क्या होता है, पीएमओ है, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी और स्टेट्स, तीनों इन्वॉल्व हैं। It means it is a very good initiative to have good governance in the country with the involvement of the PMO, union government and the state government. Clear? ये क्वेश्चन आ सकता है, proactive governance and timely implementation. और पर्पस क्या है? To address the common man's grievance. Clear? Very good. Now language in the court. गुजरात हाई कोर्ट ने एक पर्सन को बहुत जोर से डांट लगाई कि आप गुजराती में क्यों बात कर रहे हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन में आया कि कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है। ठीक है, कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट कोई और अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं करती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट स्पेसिफाई अदरवाइज, English will be the language of Supreme Court and every High Court in India. Okay? It will be the language of any Supreme Court and High Court. Yeah? English will be the language. लेकिन कोई भी provision गवर्नर को with the prior consent of the president रोक नहीं सकता where the Hindi or any other language to be made as the official language of the High Court. It means Parliament या तो law से other language specify कर सकते हैं, या फिर governor with the prior consent of the president can provide other language as the language of the High Court. Supreme Court की language बेटा English ही रहेगी।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में आप रीजनल लैंग्वेज नहीं अलाउ कर सकते, इट इज ओनली फॉर द हाई कोर्ट वेयर द गवर्नर कैन डू दैट। तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती कि नहीं कर सकती? नो, ओनली द गवर्नर। एंड दैट इज व्हाई यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंदी का यूज होता है, तमिलनाडु में तमिल का यूज होता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है इंग्लिश में ही जजमेंट देगी, उसमें कोई भी क्लॉज हाई कोर्ट के जजमेंट डिग्री के लिए नहीं अप्लाई होगा कि आपको उसी लैंग्वेज में देना है। ठीक है, हाउएवर द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल रिमेन इंग्लिश। क्लियर? व्हेन इट कम्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज होगी? वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स द लैंग्वेज विल बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो प्लीड करना चाहते हैं इन सच लैंग्वेज, जो या तो इंग्लिश नहीं है या द पर्सन डज नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, इन दैट केस जो कोर्ट है, कोर्ट उसको एक तो ट्रांसलेटर प्रोवाइड करेंगे और उस ट्रांसलेशन का खर्चा कोर्ट ही उठाएंगे। ठीक है, पर्सन डू नॉट नीड टू बियर एनी एक्सपेंस। अंडरस्टूड? समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। बस यही सब चीज है। तो एज पर द सीआरपीसी ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, स्टेट की सारी कोर्ट की लैंग्वेज डिसाइड करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश, हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज कौन चेंज कर सकता है? या तो पार्लियामेंट या फिर गवर्नर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज कौन डिसाइड करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? समझ गए? क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब बेंच पे क्वेश्चन आया है, एडहॉक जजेस पे क्वेश्चन आया, तो बेटा लैंग्वेज पे आ सकता है। ठीक है, और आ गया तो जो है इस क्वेश्चन का रेट उस दिन बता दें कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का रेट कितना चल रहा है। ओके, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन नहीं? चलिए, अब लोक अदालत have been asked previously and during the COVID-19, क्योंकि लोक अदालत ई लोक अदालत की तरह यूज होती है, तो 2021 में 1,27,87,329 केसेस ट्राई हो गए। मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है थ्रू द लोक अदालत। अब लोक अदालत क्या है? इट इज अ वे ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। इट इज अ वे ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इन that the people can get expeditious justice. मतलब it is not the part of court hierarchy. लोक अदालत्स are not court. इसमें वर्ड अदालत है, इसका मतलब नहीं समझिए कि it is a court. Clear? Very good. So लोक अदालत is not a court. First लोक अदालत was organized in 1982 in Gujarat. ठीक है, क्या ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसके पास? Yes. It was given a statutory status under the Legal Services Authority Act 1987. अब जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी कमेटी है, दे कैन ऑर्गेनाइज लोक अदालत। ओके, लोक अदालत हमेशा नहीं रहती है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ये कहाँ रहती है? कुछ एक एरिया में रहती है जहां पर कुछ सर्विंग या कुछ जुडिशियल ऑफिसर उस टाइम पर दे आर प्रोवाइडिंग द डिसीजंस। ओके, इसमें कौन रहते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एज चेयरमैन एंड लॉयर्स एंड एडवोकेट्स एज द मेंबर्स। इसमें सोशल वर्कर होते जरूर है। दिस वाज द क्वेश्चन दैट देयर इज अ सोशल वर्कर इन लोक अदालत। यस, देयर इज अ सोशल वर्कर। अब इस एक्ट को अमेंड किया गया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम परमानेंट लोक अदालत भी बना दी गई है। क्लियर? पहले के टाइम पे ऑर्गेनाइज होते हैं, परमानेंट लोक अदालत भी है। अब लोक अदालत में आप कौन सा कोर्ट केस लेके जा सकते हो? ठीक है, आप कोई भी केस लेके जा सकते हो जो पेंडिंग भी है या वो कोर्ट के पास नहीं गया है एंड वो उस जुरिस्डिक्शन के अंदर है। क्या आप इसमें कोई केस लेके जा सकते हो दैट इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल केसेस? सो लोक अदालत डज नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन उन केसेस में जिसमें आप फाइन के थ्रू नहीं छोड़ सकते। अगर कोई भी ऐसा केस जहां पर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की ही मिलनी होगी कंपल्सरीली, मतलब और वाला सिस्टम नहीं है, एट दैट प्लेस लोक अदालत कैन नॉट हियर दैट केसेस। इसका मतलब कंपाउंडेबल जो केसेस हैं
कंपाउंडेबल जो केसेस हैं वो लोक अदालत कैन ट्राई, बट नॉन कंपाउंडेबल केसेस कैन नॉट बी ट्राइड बाय लोक अदालत। क्लियर? क्रिमिनल कर सकते हैं बट कंपाउंडेबल। क्लियर? मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल केस जो पैसे देकर भी, फाइन देकर भी कोई छूट सकता है, दैट कैन बी ट्राइड बाय लोक अदालत, बट नॉन कंपाउंडेबल नहीं हो सकते। क्लियर? समझ में आया? और जो अगर लोक अदालत में कोई भी केस आपने लिटिगेशन स्टेज पे उसे लोक अदालत पे रेफर किया तो आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। ठीक है? कोर्ट फीस वापस हो जाती है, ऐसा नहीं कोर्ट फीस वापस नहीं होगी। क्लियर? क्या लोक अदालत की अपील सेशन कोर्ट्स में लाया करती है? हाँ, अगर अपील लाया करी तो फायदा क्या हुआ लोक अदालत के बच जाने का? है ना? ये तो अननेसेसरी आपने और टाइम जाहिर किया जस्टिस के लिए। क्लियर? अब ये कौन सा कोड फॉलो करती है? नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस फॉलो करती है। ठीक है? इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन नहीं? चलिए आगे। लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्यों? दो रीजन। एक तो क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा हम लोग जब इनिशियली पॉलिटी पढ़ते हैं लोक अदालत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, है ना? कोई दिक्कत? नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर दिया। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड। आर्टिकल 312 एक बार खोल के देखो। ठीक है, देखो लिखा है 42nd Constitutional Amendment Act amended the Article 312 empowering the Parliament to make laws for the creation of one or more All India services including All India Judicial Services. So All India Judicial Services mentioned in the Constitution? True. Okay. Is it mentioned in the Constitution? True. Now कौन किसके पास पावर होती है? सर अगर आया कि इट वाज मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं आए? नहीं है, नहीं ओरिजिनल में भी जो है था पावर पार्लियामेंट को दे दी गई है। एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ, क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने वैसे। ऑल इंडिया जुडिशियल, आप एक काम कीजिए, दो चीजें है ना, एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का ये जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन, हाँ चेयरमैन है, एक ही आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, और एक है ओरिजिनल में था कि नहीं। ठीक है? नाउ कैसे बन सकती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज? इट इज थ्रू आर्टिकल 312। ये पावर है राज्यसभा की स्पेशल पावर। ठीक है? इट इज द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा वेयर राज्यसभा बाय विच मेजॉरिटी? स्पेशल। कौन सी वाली स्पेशल? कितने स्पेशल है वो बताओ? क्योंकि यूपीएससी तो बेटा स्पेशल वर्ड यूज ही नहीं करते, वो तो पूरा एक्सप्लेनेशन वाला यूज करते हैं। सर मेंबर्स मोर देन 2/3 का सपोर्ट होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ तो टोटल मेंबरशिप विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ देम प्रेजेंट एंड वोटिंग। ट्रू? यही है।
यही है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, है ना? यही है पक्का? वेरी गुड, यहाँ शाबाश, सब पढ़ेंगे। Majority of not less than 2/3 of the member present in voting. Okay, it is the majority of members not less than 2/3 present in voting. Total membership की majority नहीं चाहिए, only 2/3 of the members present in voting. Clear? समझ गए? Very good. So this is about the All India Judicial Services. क्यों चाहिए बताने की जरूरत है? नहीं। क्या पहली बार प्रपोजल आया था? अब जो है नहीं, ये 14 लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी है। क्लियर? तो ये बहुत पहले से रिकमेंडेशन चल रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि देयर हैज टू बी अ सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म जिसके थ्रू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है बना दी जाए। क्लियर? अब बाकी बेनिफिट्स ऑफ AIJS ये बताइए, तो मेंस का टॉपिक है, हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कोर्ट ने बोला अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इट कैन मेक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। क्लियर? ये सब मेंस का। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द कोर्ट. It is under the article 129, so it is a constitutional power. It cannot be taken away by any law, because there was a lot of discussion whether the contempt of court power should be with the courts or not. So it cannot be taken away by any law. अब contempt of court, is it mentioned in the constitution? Yes. कौन से उसमें mentioned है? Article 129. At Article 129 provides the power to the Supreme Court to punish for its contempt. अब ये जो कंटेम्प्ट पावर है, इज इट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. वेरी गुड. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. चलो इतना आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है. वी डिस्कस दैट. It is neither defined in the constitution nor in the contempt of court 1971. It only provides for the classification. The act provide for the classification. अब civil contempt क्या होता है आप लोगों को पता है? Civil contempt मतलब you are willfully violating the undertaking, or you are going against the violation, or you going against the idea that are mentioned in the constitution. Second thing, you are अगर if you are trying to scandalize the court, lowering the authority of court, or you are interfering in the functioning of the court, that will be a criminal contempt. There can be punishment for 6 months or 2000 का fine for the contempt. Clear? समझ में आया? 1 साल के बाद अगर न्यू आया तो नहीं होगा, 1 साल के अंदर ही आपके ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए. Is it clear? लेकिन आप लोग ऐसा कुछ करोगे नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है, इंस्पायर होकर तारीख पे तारीख मत करते. ठीक है, वैसे आज हमने किसी गाड़ी पे लिखा हुआ था, किसी एडवोकेट ने लिखा हुआ गाड़ी पे पीछे लगा हुआ था ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड. ठीक है, वो जमाने गए. पहले लिख के जैसे लिखते थे ना, मॉम्स गिफ्ट, डैड गिफ्ट, अब इंटेलेक्चुअल लिख रहे हैं लोग, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड. क्लियर? तो आज के लिए इतने करंट अफेयर्स काफी है ना? इतना डिले किया. टुमारो यू विल बी हैविंग योर इकोनॉमिक्स क्लास. ठीक है, टुमारो यू विल बी हैविंग इकोनॉमिक्स क्लास, and Monday से you will be having your environment and ecology for. अच्छा, करंट भी है, सिर्फ निकालते हैं कुछ तरीका. Can you all have current affairs classes on this Sunday? अगर कितने लोग हैं? देखो 7 to 9 तो आपको वो चलता ही इकोनॉमिक्स. दिन में अगर इकोनॉमिक्स आप कर लेते हैं तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट खत्म करना भी बहुत जरूरी है. क्लियर? तो विल डिस्कस. ओके गाइस, वेरी गुड. चलिए विल कंटिन्यू. अगर इकोनॉमिक्स क्लास है एक बार हम पता कर लेंगे कल इकोनॉमिक्स क्लास है कि नहीं है. ठीक है, अगर नहीं होगी तो कल करंट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. विल फिगर इट आउट. अदरवाइज हिस्ट्री रखवा रहे. आप लोग ये टेंशन मत लो, अप्रैल में सारा मेजर पोर्शन हम बेसिक वाला खत्म कर देंगे. क्लियर? और
करंट में हम बेसिक रिवीजन करते ही रहते हैं, है ना? वेरी गुड. सो विल कंटिन्यू ऑन मंडे. आई टेल यू अबाउट इट. करंट अफेयर्स वालों का बाकी अदर्स की तो क्लास कल भी है. करंट अफेयर्स की क्लास आई अपडेट यू. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. संडे और मंडे आई अपडेट यू.